Hey guys, welcome to the channel and now we'll be starting with power sharing. So power sharing ये आपकी क्लास 10th की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 है. Now what do we mean by power sharing? So let's take example of pizza sharing, right? Now we have a pizza and there are 4 people. So what will be doing? We'll be cutting that pizza into 4 pieces. We'll distribute that pizza into 4 pieces, right? So what is this? This is sharing. You have one thing, you shared it. Like that, in power sharing, we can say that government is one whole thing and we have shared it into different organs. So this is what power sharing is. Okay. Now let's get started with this chapter. Before starting with the chapter, I would like to tell you कि power sharing दो तरह से हो सकती है. One power sharing can be horizontally done, the other can be done vertically. Now what do you mean by vertical? So vertical means stepwise. ठीक है, सबसे बड़ा से स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप. दैट मीन्स लेवल. सो जब मैं गवर्नमेंट की लेवल्स की बात करती हूँ, we are actually talking about the vertical classification in which we include the 3 levels of the government, that is the central government, state government and local level government. Meanwhile, when I am talking about horizontal classification of the government, I am not talking about any kind of levels of the government. I am saying that I have a government, I have done its 3 pieces and these 3 pieces will have different taste. ठीक है, इनका अलग अलग टेस्ट होगा एंड इनका फंक्शन बिल्कुल एक दूसरे से मिलेगा नहीं, ना ही किसी एक पीस के पास ज़्यादा पावर होगी और उसके पास कम पावर होगी. सो वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ द हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. Legislature means legislating or making any law. Executive, these are the people who execute the law, and judiciary, they keep check whether the law is properly being followed by the people of the country or whether there is any controversy related to that law. So इस चीज़ का ध्यान रखता है जुडिशियरी. So we have 3 organs of government, horizontally भी और vertically भी. The difference is when we are talking about horizontal classification, there is no you can say increase or decrease of the power of any particular group. But when I'm talking about the levels of government, vertical levels of government, then I would say that yes, there are increase and decrease of the power. Okay, so when we are at the top, at the central level, power is going to be highest. Then when I will be entering into the second group, that is the state level, so then I'm going to have some less power than at the state level. At the local level, I will be having very less powers. But the other thing is, now यहाँ पर जब मैंने पावर शेयरिंग की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में भी, तो जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हुई थी उसमें हमने जहाँ पे जुडिशियरी की बात की थी, हमने हॉरिजॉन्टल पावर में बोला लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी. इस जुडिशियरी में अगर मैं बात करूँ तो फर्दर 3 ऑर्गन्स हैं और इन 3 ऑर्गन्स की जो हैं आपके जुडिशियरी के अंडर में, लाइक यू हैव योर हाई कोर्ट, देन यू हैव योर लोकल लेवल कोर्ट या जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं, और एक होती है सुप्रीम कोर्ट. तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल लेवल कोर्ट में, ठीक है, क्या आ जाता है, वर्टिकल डिविजन, वर्टिकल क्लासिफिकेशन आ जाता है. तो वर्टिकल क्लासिफिकेशन और हॉरिजॉन्टल क्लासिफिकेशन द बेस्ट वे टू लर्न पावर शेयरिंग. ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. नाउ इस चैप्टर में हम एक टूर लेंगे ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर. तो हमने लास्ट ईयर डेमोक्रेसी को पढ़ा था और अब हम एक उसका सेकंड लेवल शुरू कर रहे हैं. सो हमने लास्ट ईयर ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी में जो सारे की सारी पावर है वो किसी एक पर्सन या एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पे आकर नहीं रह जाती है. एक इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग की जाती है जिसमें क्या किया जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में हम क्या कर देते हैं, पावर को डिफाइन कर देते हैं और शेयर कर देते हैं. इस
चैप्टर में और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में, दैट मीन्स 1, 2 एंड 3, इन चैप्टर्स में हम इस आइडिया को पावर शेयरिंग इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो हमने हमें दो स्टोरीज पढ़नी है ऑफ बेल्जियम। दे आर बेसिकली केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये दो कंट्रीज़ बहुत छोटी है, बड़ी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अब दो कंट्रीज़ हैं, दोनों में डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन अंतर यहाँ आता है कि वो दोनों कंट्रीज़ जहाँ पे डाइवर्सिटीज़ हैं वो बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करती है तो किस तरह से कोप अप करती हैं इन दो ये जो दो कंट्रीज़ है कैसे कोप अप करती हैं इन डिफरेंसेस को, इन सोशल डिफरेंसेस को, ये लिंग्विस्टिक डिफरेंस जो भी डाइवर्सिटीज़ है। क्योंकि इस चैप्टर में हम बेल्जियम को एक पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे और श्रीलंका को नेगेटिव सेंस में। इसको मैं आपको यहाँ पे ऐसे कह सकती हूँ कि जब मैं बेल्जियम की बात करूँगी तो मैं ये देखूँगी कि वहाँ पर कंट्री में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको साथ में लेकर के चलते हैं लोग, और उन सभी जो डाइवर्सिटीज़ है या जो अनेकताएं हैं उनमें वो एकता ढूंढते हैं। लेकिन श्रीलंका में अगेन बहुत डाइवर्सिटी है, वो उस डाइवर्सिटी को और बढ़ा देते हैं और वो मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटेरियनिज्म होता है जब मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप, जो सोसाइटी में मेजॉरिटी वाला ग्रुप है, लाइक अगर मेरे पास ABC 3 ग्रुप हैं एक कंट्री में, अगर एक ग्रुप मेजॉरिटी में है तो एक ग्रुप ही क्या करेगा? रूल करेगा पूरी कंट्री को, है ना, रिगार्डलेस ऑफ द नीड्स एंड रिगार्डलेस ऑफ द विशेस ऑफ द अदर ग्रुप्स। तो इसे हम कहते हैं मेजॉरिटीनिज्म, ठीक है। तो मेजॉरिटेरियनिज्म देखेंगे हम वहाँ पे। सो नाउ दिस अलाउज अस टू डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग दैट विल बी टेकन अप इन द फॉलोइंग चैप्टर्स। अब हम केस स्टडी ऑफ बेल्जियम करते हैं। एक सेकेंड, लेट मी थोड़ा आगे आ जाती है। यस, Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of हरियाणा। हरियाणा को यहाँ पे आपने अपनी जो कंट्री का एक स्टेट है इसको लेकर के चलो। बेल्जियम क्या है? एक स्मॉल कंट्री है एंड वो यूरोप से भी ज़्यादा छोटी कंट्री, यूरोप में है। बेल्जियम इज़ इन यूरोप एंड ये हरियाणा से भी ज़्यादा छोटी कंट्री है। सो इट इज़ अ स्मॉलर देन हरियाणा। तो एक हरियाणा हमारी जो स्टेट है वो बहुत छोटी है, लेकिन ये जो कंट्री है ये इससे भी छोटी है। सो हरियाणा से भी छोटी कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पे है? इट इज़ इन यूरोप। और ये किन के साथ अपने बॉर्डर्स को शेयर करती है? फिर दिस इज़ बेल्जियम, यहाँ पे देखो तो ये है बेल्जियम। तो ये किन किन के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर कर रही है? विद फ्रांस, विद जर्मनी, विद नीदरलैंड, ठीक है। और ये है एक ल्यूज़मबर्ग, ठीक है। ये 4 नाम याद रखो, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और ल्यूज़मबर्ग, ठीक है। नाउ इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है लेस देन हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन है 2.15 करोड़, समथिंग लाइक दिस। तो इसकी बेल्जियम की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी है, दैट मीन्स समथिंग अराउंड 1 करोड़ या उससे थोड़ी ज़्यादा। तो जर्मनी एंड ल्यूज़मबर्ग, नीदरलैंड एंड फ्रांस इसके साथ इसके बॉर्डर शेयर हो रहे हैं। पहली बात तो ये। इसकी पॉपुलेशन कितनी है? इसकी पॉपुलेशन है 1 करोड़ से थोड़ी ही ज़्यादा, दैट इज़ दी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, क्योंकि हरियाणा की पॉपुलेशन 2 करोड़ है तो उसकी आधी है इसके बेल्जियम के पास, ठीक है। सो इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, थोड़ी सी ज़्यादा है थोड़ी सी ज़्यादा है 1 करोड़ से, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन की आधी पॉपुलेशन यहाँ पे है, बहुत कम पॉपुलेशन। अब हम एथनिक कंपोजिशन अगर बात करें तो इस कंट्री में एथनिक का क्या मतलब होता है ना, एथनिक का मतलब आपको इधर भी दे रखा है ऑल दो, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हो। कोई भी सोशल डिवीजन जो किस पे बेस्ड, जो कल्चर पे बेस्ड हो। अगर मेरे पास ABCD 4 ग्रुप्स हैं और मैं कहूँ कि इनका डिवीजन जो है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर है,
तो वो क्या होगा, कल्चरल डिवीजन या एथनिक कंपोजिशन कहलाएगा। और यहाँ पे जो लोग कल्चर फॉलो कर रहे हैं, मे बी वो सेम रिलीजन के हों या फिर मे बी वो डिफरेंट रिलीजन के हों, बट एथनिक कंपोजिशन का मतलब है कि डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन नहीं बट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। ठीक है, अब इस कंट्री में हमें क्या दिख सकता है, एथनिक कंपोजिशन दिख सकता है। ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन है। कंट्री की अगर हम टोटल पॉपुलेशन में से देखें तो 59% जो है यहाँ पे फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो डच बोलते हैं, डच स्पीकिंग रीजन बोल सकते हो आप उसको। सो दैट इज़ द डच स्पीकिंग रीजन। व्हाट इज़ अ डच स्पीकिंग रीजन, फ्लेमिश। ठीक है, उसके बाद अगर हम 40% की बात करें, वो रहते हैं वॉलोनिया या वॉलून रीजन में, जहाँ पे बोली जाती है फ्रेंच। और जो 1% बचता है वो लोग बेल्जियम के बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज। सो यहाँ पे वॉलून जो है वहाँ पे बोलते हैं फ्रेंच, फ्लेमिश में बोलते हैं डच, जर्मन स्पीकिंग रीजन आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है दैट इज़ अ जर्मन स्पीकिंग रीजन। जो टॉप नॉर्थ पे आ रहा है दैट इज़ योर फ्लेमिश रीजन, जहाँ पे क्या बोली जाती है, डच। और जो एकदम साउथ में आ रहा है रेड वाला पोर्शन, ये किसका होगा, यहाँ पे दे रखा वॉलून का होगा, जो कि क्या है, फ्रेंच बोलता है। और जो ऑरेंज पोर्शन है वो है यहाँ की कैपिटल, ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। समझ में आ गया। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा यू कैन से कि मेजॉरिटी कौन है, डच है। माइनॉरिटी कौन आ गया, फ्रांस आ गया। जर्मनी भी है बट ये तो 1% है, बहुत नेग्लिजिबल है। अगर हम प्रॉपर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करें तो मेजॉरिटी में तो आ गया डच स्पीकिंग वाला, डच स्पीकिंग रीजन। ठीक है, द रीजन डच स्पीकिंग कम्युनिटी आ गई। वो कम्युनिटी जो कि फ्रेंच बोलती है वॉलोन रीजन में, वो माइनॉरिटी में आ गई। लेकिन इसका कंट्रास्ट देखा जा सकता है ब्रुसेल में। ब्रुसेल जो यहाँ की कैपिटल है, वहाँ पर 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, वह ओनली 20% जो है डच बोलते हैं। तो कंट्री में बात कर, अब मैं स्कूल में बात करूँ तो स्कूल में गर्ल्स कम है बॉयज़ ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं अपनी क्लास की बात करूँ तो गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज़ कम है। लाइक दैट ओनली यहाँ पे हुआ है कि पूरी जो कंट्री है उसमें क्या है, डच ज़्यादा है और फ्रेंच स्पीकिंग लोग कम है। लेकिन कैपिटल में बोलूँ तो वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, डच स्पीकिंग लोग कम है। डन। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो क्या है, रिच है और पावरफुल है। दिस वॉज रिसेंटेड बाय डच कम्युनिटी। और ये डच लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है बात कि फ्रेंच लोग जो इतने डेवलप्ड हैं एजुकेशनली भी, इकोनॉमिकली, वाई वी आर नॉट सो डेवलप्ड। सो डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी उनको ऐसा लगता था कि उन्हें नहीं मिल रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, उनको बहुत लेट मिले थे बेसिकली, ये दैट वाज इट। सो अब इनको बहुत कम मिल रहे हैं एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनका कम है, एजुकेशन इनको नहीं मिल रही है। तो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ में हो गई थोड़ी टेंशन क्रिएट, यानी कि थोड़ी सी एक तरह से कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन आ गई है। 1950s और 1960s के बीच में ये कंडीशन अराइज हुई थी, जब डच स्पीकिंग लोग को लगा था कि हमारी जो मूल अधिकार है लाइक एजुकेशन से हमें दूर रखा जा रहा है, हमारे में डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमको कम कर हमारे पर कम हो रहा है, हमें कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रहा है, वेयर एज फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ को तो बहुत मिल रहा है। तो 1950s और 1960s के बीच में टेंशन क्रिएट हुई थी। अब ये जो दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन थी वो और ज़्यादा बिगड़ती गई ब्रुसेल में, क्योंकि ब्रुसेल में का जो सिचुएशन थी वो थोड़ी उल्टी थी।
प्रॉब्लम क्या थी? ब्रूजल प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। जो डच स्पीकिंग पीपल थे वो मेजॉरिटी में थे, बट इन द कंट्री, इन द कैपिटल दे वर वेरी लेस, दे वर इन माइनॉरिटी। डच स्पीकिंग कंट्री में ज़्यादा थे लेकिन वैसे ब्रूजल में कम थे। ठीक है, सो अब यहाँ पर क्रिएट होता है काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। इस कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाएं कैसे हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को इस तरह से क्लियर आउट करें कि लड़ाई भी ना हो, सबके अधिकारों का भी हम किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो, सब कुछ किस तरह से चले कि अच्छे से हो जाए, देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम श्रीलंका के बारे में जानते हैं। तो अगर हम देखें अनदर सिचुएशन दैट इज़ ऑफ श्रीलंका, एक आइलैंड नेशन है, हमारे कंट्री के बिल्कुल साउथ में है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है ये 2 करोड़ है, दैट इज़ इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। लाइक अदर नेशंस, जैसे साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो वैसे ही श्रीलंका में भी बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर हम यहाँ पे इसकी कंपोजिशन, श्रीलंका की कंपोजिशन की बात करें तो जो मेजर सोशल ग्रुप है वो है सिन्हाला स्पीकर्स का। लिंग्विस्टिक डिवीजन हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो सिन्हाला स्पीकर्स है 74%, तमिल स्पीकर्स है 18%। ये जो तमिल स्पीकर्स है इनमें भी कुछ जो है दैट इज़ 13%। ये क्या है? श्रीलंकन तमिल्स हैं, जिनका जो मतलब पूरा कह सकते हो आप, दे बिलोंग टू श्रीलंका, नेटिव सिटीजन्स ऑफ श्रीलंका। लेकिन जो 5% बचे हैं वो जो तमिल्स हैं उनका जो नेटिविटी है वो बिलोंग करती है इंडिया से। वो चले गए थे श्रीलंका में ड्यूरिंग द कोलोनियलिज्म पीरियड। ठीक है, और उनको हम कहेंगे इंडियन तमिल्स। सो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं ये नॉर्थ में और ईस्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं। जो सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को बुद्धिज्म को फॉलो करती है, दैट मीन्स वो बुद्धिस्ट है। वेयर एज तमिल्स जो हैं दे आर आइदर हिंदूज और दे आर मुस्लिम्स। ठीक है, सो इन जो तमिल्स हैं ये ज़्यादातर हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, और 7% कुछ होंगे जो क्रिश्चियंस होंगे, और जो तमिल्स और सिन्हाला दोनों ही बोलते होंगे। तो जो ये क्रिश्चियंस हैं जो ये जो तमिल क्रिश्चियंस हैं ये क्या है? वो तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। बेल्जियम में जो डच कम्युनिटी है वो एडवांटेज ले सकती है अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का, नंबर में ज़्यादा है तो बेल्जियम में ऐसा हो सकता है कि डच कम्युनिटी जो है अपनी अथॉरिटी ले ले और अपने को एज अ मेजॉरिटी वो वहाँ पे ऑथराइज्ड कर दे, और फ्रेंच लोगों को और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन को दबा के रखते। ये क्या होगा? कन्फ्लिक्ट लाएगा कम्युनिटीज़ में फॉर ईच अदर, और दिस वुड लीड टू मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रूजल, क्योंकि ब्रूजल देखा जाए तो वैसे तो कंट्री की मेजॉरिटी डच है तो उनके पास जाना चाहिए, लेकिन ब्रूजल में जो मेजॉरिटी है वो तो फ्रेंच की है, तो वो फ्रेंच के पास भी जाना चाहिए, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के पास। सो बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रूजल। श्रीलंका में देखें तो जो सिन्हाला कम्युनिटी है in Jordan even bigger majority and could impose its will on entire country. Now we'll see what happened in both the countries. ये था पार्ट 1, मैं पार्ट 2 लूँगी आपका नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।